Greetings to all and welcome back to my channel, that is Commerce Classes by Ronak Sharma. Till now we have covered three parts of history and approaches to management. In the first part we had covered introduction, meaning of classical approach, which has three pillars: scientific management, administrative management and bureaucratic management. And we will discuss meaning of scientific management, contribution of F.W. Taylor to scientific management and principles of scientific management. In the second part or second lecture, we had covered techniques of scientific management, and in the third part or third lecture, we have discussed about evaluation, means merits and demerits of scientific management. In short, in the previous three lectures, we have covered first pillar of classical approach, that is scientific management. And today we are going to discuss second pillar of classical approach, that is administrative management. Administrative management approach to management was advocated by Henry Fayol and is also called process Fayol. एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच को आप क्या बोलते हो? प्रोसेस फ्यूल भी बोलते हो. और ये किसने एडवोकेट किया था, किसने प्रोपाउंड की थी ये अप्रोच? हेनरी फ्योल ने. दिस अप्रोच इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोसेस मैनेजमेंट. एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच को हम एक और नेम से भी जानते हैं, दैट इज प्रोसेस मैनेजमेंट. फ्योल इज कॉल्ड द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट in the same way as Taylor is called the father of scientific management. जैसे हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन थे? F.W. टेलर. मीन्स हम F.W. टेलर को एज अ फादर मानते थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के. उसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच के फादर कौन है? फ्योल, हेनरी फ्योल. He acquired the knowledge of management by working as a manager in various companies in France. Fayol started his career in 1860 in French company as a junior engineer. He was appointed as the chief executive officer in the year 1888 in the same company. When he joined this company, the economic condition of his company was very bad and it was on the threshold of bankruptcy. देखो, फ्योल ने अपना करियर कब स्टार्ट किया था? इन द ईयर 1860 इन फ्रेंच कंपनी. फ्रेंच की किसी कंपनी में किस पोस्ट पे किया था? एज अ जूनियर इंजीनियर, राइट. ही वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन 1888 इन द सेम कंपनी. और कुछ समय बाद, आफ्टर 28 years, he was appointed as the CEO of the same company, right? When he joined this company, जब उन्होंने ये कंपनी ज्वाइन की थी तो उस कंपनी की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही बुरी थी. हम बोल सकते हैं वो मतलब एक स्टेज पर थी, बैंकरप्सी स्टेज पर, मतलब जब कंपनी का पूरी तरह से दिवालिया निकला हुआ था, राइट. He, with the help of his ability, not only saved the company from going bankrupt but changed it into prosperous company. देखो, जो हमारे हेनरी फ्योल थे, उन्होंने अपनी एबिलिटीज लगाई, उन्होंने अपने एफर्ट्स लगाए ताकि अपनी कंपनी को सेव कर सके, बचा पाए फ्रॉम बैंकरप्सी. ठीक है. सिर्फ यही नहीं, उन्होंने कंपनी को चेंज कर दिया था इनटू अ प्रॉस्पेरस कंपनी. बहुत ही वेल क्रेडिट वर्दीनेस, वेल ट्रस्ट वर्दीनेस कंपनी में उसे कन्वर्ट कर दिया था. आफ्टर मेकिंग मेनी एक्सपेरिमेंट्स, he reached the conclusion that the management activity is a special activity which is different from accounting, sales, production and other related activities, and which is completely in a similar manner in all the organization, whether it is business or non-business organization. देखो, हेनरी फ्योल ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद एक कंक्लूजन तक वो पहुंचे थे कि मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है, ऐसी स्पेशल एक्टिविटी है जो कि डिफरेंट है आपकी अकाउंटिंग से, सेल से, प्रोडक्शन से.
ठीक है, और इसे कंप्लीट हर ऑर्गेनाइजेशन में सिमिलर मैनर में किया जाता है, चाहे वो आपका बिजनेस है या फिर आपकी कोई नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एनजीओज है अगर आपकी, तो आप वहां पर भी मैनेजमेंट को सेम वे में ही करते हो जैसे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में कंप्लीट करते हैं, राइट। This conclusion of Fayol is brings about two features of management. First one is management is an activity which is different from other business activities. पहली फीचर क्या निकली है कि मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि बाकी अदर एक्टिविटी से डिफरेंट है, ठीक है। इट मीन्स मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी विच इज सेपरेट और डिफरेंट फ्रॉम सम अदर एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। एंड सेकेंड फीचर इज मैनेजमेंट हैज द क्वालिटी ऑफ बीइंग यूनिवर्सल। मैनेजमेंट के पास एक ऐसी क्वालिटी है कि वो क्या है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि आप उसे सिर्फ आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप हॉस्पिटल्स में यूज़ कर सकते हैं। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। आप हर जगह पर ही मैनेजमेंट को यूज़ कर सकते हैं, यूनिवर्सल है इसका एप्लीकेशन, ठीक है। देखो, आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में भी मैनेजमेंट करते हो, ठीक है। अगर आप जॉब करते हो तो आपको तब भी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। इफ़ यू आर रनिंग सम स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस, स्पोर्ट्स कोचिंग सेंटर्स या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, कोई भी आपकी कंपनी रन कर रही हो वेदर, तो आपको हर जगह पर मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो क्या है, दो फीचर्स निकलती हैं हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग। फर्स्ट वन इज मैनेजमेंट इज अ एक्टिविटी विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर बिजनेस एक्टिविटीज, एंड सेकेंड मैनेजमेंट हैज द क्वालिटी ऑफ बीइंग यूनिवर्सल, ठीक है। क्लैरिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट फीचर, Fayol has divided all the business activities into 6 parts and the management activity is one of them. देखो, Fayol ने ना जितनी भी बिजनेस में एक्टिविटीज कंडक्ट होती हैं, परफॉर्म की जाती हैं, उनको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। और मैनेजमेंट भी उनमें से एक होता है। और वो 6 एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं, देखो। फर्स्ट वन इज टेक्निकल एक्टिविटीज, सेकेंड कमर्शियल एक्टिविटीज, थर्ड फाइनेंशियल एक्टिविटीज, सिक्योरिटी एक्टिविटीज, अकाउंटिंग एक्टिविटीज एंड सिक्स्थ वन इज मैनेजरियल एक्टिविटीज, ठीक है। और हम मेनली फोकस किस पे कर रहे हैं, मैनेजरियल एक्टिविटीज के ऊपर। द मैनेजरियल एक्टिविटीज इंक्लूड, देखो हम मैनेजरियल मतलब मैनेजमेंट, ठीक है। और हमने मैनेजमेंट की जब ये सीरीज स्टार्ट की थी तो वेरी बिगिनिंग में हमने किया था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो वो सारे फंक्शंस ही मैनेजरियल एक्टिविटीज के अंदर इंक्लूड होते हैं। लाइक प्लानिंग है आपका, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग है, कोऑर्डिनेटिंग, कमांडिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है। द अबव डिस्क्रिप्शन मेक्स इट क्लियर दैट मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी। क्लैरिफिकेशन ऑफ द सेकेंड फीचर, Fayol made it very clear that management is a kind of activity which is implemented in a similar way in all the business and non-business organizations. Fayol ने क्या किया है, एक क्लैरिफिकेशन दी है कि मैनेजमेंट क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ एक्टिविटी, एक्टिविटी की तरह है जो कि इम्प्लीमेंट होती है सिमिलर वे में और हर तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में, वेदर इट इज अ बिजनेस या फिर वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, हर जगह मैनेजमेंट सिमिलर वे में ही इम्प्लीमेंट की जाती है। इट मीन्स दैट वट एवर इज डन अंडर मैनेजमेंट इज डन इन अ सिमिलर मैनर इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस। क्या मतलब हुआ कि आप जो कुछ भी करते हैं मैनेजमेंट के अंदर वो आप सिमिलर मैनर में ही परफॉर्म करोगे हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है। Fayol has presented the following 5 functions and 14 principles of management and asserted that any organization which follows them is sure to succeed. देखो, Fayol ने ना 5 functions प्रेजेंट किए हैं और 14 प्रिंसिपल्स प्रेजेंट किए हैं मैनेजमेंट के, और उन्होंने क्या एजर्शन दी है एक कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, जो हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है, 5 फंक्शंस और 14 प्रिंसिपल्स अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है तो उनकी सक्सेस क्या होती है, फॉर श्योर। देखो, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू Fayol, फर्स्ट वन इज प्लानिंग। इट मीन्स आपको क्या करना है, अगर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, बिफोर दैट यू हैव टू प्लान इट प्रॉपरली। कब क्या करना है, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, हु इज टू डू इट एंड बाय, ठीक है। और फिर आता है सेकेंड, ऑर्गेनाइजिंग। फिर आप क्या करते हो, एडजस्टमेंट करते हो, हार्मोनियस एडजस्टमेंट्स करते हो अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट्स।
कोऑर्डिनेशन भी क्रिएट करोगे, कमांड दोगे, ऑर्डर्स देने हैं। देखो जब तक आपको कोई ऑर्डर नहीं देगा आपको पता ही नहीं होगा पर्टिकुलर वर्क करना कैसे है, ठीक है। तो कमांडिंग और कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, ब्रिंगिंग द डिजायर्ड रिजल्ट्स क्लोजर टू द एक्चुअल रिजल्ट्स, ठीक है। ये सब ना हम वैसे पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, जो एक टॉपिक था आपका फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। ये सारी एक्सप्लेनेशन डिटेल में वहां पर मेंशन है, आप वहां पे देख सकते हो वो वाली वीडियो। देखो नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू फ्यूल। फ्यूल के अकॉर्डिंग 14 प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट में, ठीक है। फर्स्ट वन इज डिवीजन ऑफ वर्क। आपने क्या करना है, पर्टिकुलर वर्क को डिवाइड करना है सो दैट आप हर ईच डिवाइडेड वर्क को, ईच पार्ट को असाइन कर सको टू द एक्सपर्ट्स। इससे क्या होता है, आपको स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट्स भी मिलते हैं आपको, और आपका वर्क एफिशिएंट मैनर में कंप्लीट भी हो जाता है। सेकंड है आपके पास अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रॉपरली अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए, किस पर्सन को क्या काम करना है, किसकी क्या ड्यूटी है, किसकी क्या अथॉरिटी है, ठीक है। डिसिप्लिन, थर्ड प्रिंसिपल इज डिसिप्लिन। हर पर्सन को डिसिप्लिन्ड मैनर में रहना चाहिए। इट मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं हर कंसर्न्ड इंडिविजुअल को उन्हें फॉलो करना है। नेक्स्ट वन इज यूनिटी ऑफ कमांड। देखो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लॉयज को ऑर्डर देने वाला एक ही पर्सन होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक इंप्लॉय को 10 बंदे ऑर्डर कर रहे हैं, नो। क्योंकि अगर देखो 2 या 2 से ज़्यादा भी अगर ऑर्डर देंगे ना किसी एक पर्सन को या फिर एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को, तो वो क्या होती है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, किसका काम पहले करना है किसका बाद में करना है, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब कमांड देने वाला पर्सन एक ही होना चाहिए सो दैट जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उन्हें पता हो कि वो किन को आंसरेबल हैं, ठीक है। फिर आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। हमें अपने एम्प्लॉयज को एज अ मैनेजर प्रॉपरली गाइड करना है, उन्हें राइट पाथ शो करना है, उन्हें डायरेक्शन प्रोवाइड करनी है सो दैट वो अपना जो भी उन्हें असाइंड वर्क है, एक्टिविटी है, वो स्मूथली कंडक्ट कर सके, ठीक है। सिक्स्थ प्रिंसिपल इज प्रायोरिटी टू जनरल इंटरेस्ट ओवर द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इसका क्या मतलब होता है कि कभी भी ना इंडिविजुअल इंटरेस्ट के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। देखो एक हमारे वर्कर्स हैं, वर्कर्स ये सोचते हैं कि मेरी वेजेस बढ़ जाए। अगर वो सिर्फ अपने वेजेस के ऊपर फोकस करेंगे ना तो उनको ये रिजल्ट अचीव नहीं होगा। लेकिन अगर सारे अपना ये मोटिव रखें कि हमें कंपनी के गोल्स को फुलफिल करना है, उनको ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, सो दैट देखो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएंगे अगर कंपनी के ओवरऑल, ठीक है। जनरल इंटरेस्ट अगर आपका अचीव हो जाएगा तो कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, और जब कंपनी के प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे तो क्या जो वर्कर्स हैं उनकी वेजेस या सैलरीज नहीं इंक्रीज होंगी, ऑब्वियसली, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, प्रायोरिटी देनी है जनरल इंटरेस्ट पे, ना कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स। फेयर रेम्यूनरेशन मींस आपको अपने एम्प्लॉयज को फेयर रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करनी है। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरीज देना, ठीक है। अगर आप सैलरीज टाइमली बेसिस पे दोगे, उन्होंने जितना वर्क किया है, जितना कंट्रीब्यूट किया है टू योर ऑर्गेनाइजेशन, उसके अकॉर्डिंग दोगे तो वो आपके सेटिस्फाइड रहेंगे, और जितने हमारे एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहते हैं उतना ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन सक्सीड होती है। इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपने जो मेन डिसीजन मेकिंग पावर है ना वो सिर्फ टॉप लेवल के पास देनी है। ऑर्डर, इक्विटी, ठीक है, ये आपके सिंपल पॉइंट्स हैं। स्टेबिलिटी इन द टेन्योर ऑफ पर्सोनल। आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज हैं, पर्सोनल मतलब जो भी पर्सन इन्वॉल्व हैं वो कैसे होने चाहिए, स्टेबल होने चाहिए, ठीक है। लेबर टर्नओवर रेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज हैं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत फ्रिक्वेंटली छोड़ के ना जाएं। इनिशिएटिव, आपको कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ को आगे लेके आना है। स्केलर चेन है। एस्पिरेट द कॉप्स, मतलब आपने क्या करना है, यू हैव टू यूज द वर्ड वी इंस्टेड ऑफ आई। जैसे हम बोलते हैं ना वी विल डू इट, इंस्टेड ऑफ यूजिंग सेंटेंस आई विल डू इट। आपने क्या करना है, हमेशा एक यूनिटी बना के रखनी है कि हम सब ये मिलके काम कर लेंगे, ठीक है। ये आपके कुछ 14 प्रिंसिपल्स हैं जो फ्यूल ने एडवोकेट किए हैं। नेक्स्ट वन इज इवेल्युएशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। देखो इवेल्युएशन जब भी आप किसी चीज़ का करते हो ना तो उसमें आपको उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों ही कवर करनी होती है, ठीक है। इवेल्युएशन का मतलब है उसके आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी चेकआउट करोगे, आप उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी देखोगे, ठीक है। फर्स्ट कम्स इम्पॉर्टेंस।
Fuel has contributed richly to the field of management. Some of his major thoughts which have greatly benefited the world of management are the following. First one is universality of management. मतलब मैनेजमेंट क्या है? यूनिवर्सली एप्लीकेबल, हर जगह पर अप्लाई होने वाला एक एक्टिविटी होती है आपकी मैनेजमेंट. ऐसा नहीं है कि आप बोले बिजनेस में ही आप यूज़ कर सकते हो या आप अपनी सिर्फ जॉब्स में यूज़ कर सकते हो. कहीं भी किसी भी एस्पेक्ट में आप चेक कर लो, आपको हर जगह मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है. ठीक है, बीइंग अ स्टूडेंट आपको अपना प्रॉपरली टाइम टेबल मैनेज करना पड़ता है. ठीक है, सो दैट आपके एट द एंड जब आपके एग्जाम्स होंगे, ठीक है, तो आपको क्या हो, ज़्यादा मतलब टेंशन क्रिएट ना हो, एकदम से बर्डन ना फील हो. तो आपको क्या करना पड़ता है? टाइम टेबल मैनेज करके चलना, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है आपने. ठीक है. सेकेंड वन इज मैनेजर्स आर नॉट बॉर्न बट क्रिएटेड. देखो, फ्यूल ने क्या बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो बाय बर्थ मैनेजर होता है. ठीक है, कुछ एक्सपीरियंस से, कुछ एफर्ट से, कुछ नॉलेज गेन करके वो क्रिएट किए जाते हैं. ठीक है, मैनेजर्स ऐसे नहीं होते कि जो बाय बर्थ ही पर्सन है वो बाय बर्थ कोई भी मैनेजर देखो नहीं होता. ठीक है, आपको उन्हें कुछ नॉलेज प्रोवाइड करनी है. देखो, डिग्रीज भी होती हैं मैनेजमेंट के लिए. ठीक है, आपको कुछ गेन करना पड़ेगा तो आप क्रिएट कर सकते हो. थर्ड वन इज ओनली अथॉरिटीज कैन बी डेलीगेटेड नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज. डेलीगेट का मतलब क्या होता है? प्रोवाइड करना, मतलब आगे ट्रांसफर कर देना. ठीक है, देखो क्या बोलते हैं फ्यूल कि आप सिर्फ अथॉरिटीज को डेलीगेट कर सकते हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकते. ठीक है, अगर कोई आपको पावर दी गई है कोई पर्टिकुलर वर्क को करने की, आप उससे तो थर्ड पर्सन को डेलीगेट कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो. लेकिन अगर कोई आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इफ यू आर आंसरेबल फॉर अ पर्टिकुलर थिंग, देन यू कैन नॉट डेलीगेट एट एनी कॉस्ट. फोर्थ वन इज द स्पैन ऑफ कंट्रोल फॉर मैनेजर शुड नॉट एक्सीड 6. जो आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल है फॉर मैनेजर्स वो 6 पर्सन से ज्यादा नहीं होना चाहिए. मैक्सिमम लिमिट क्या है? 6. फिफ्थ पॉइंट इज वन पर्सन शुड डू ओनली वन वर्क. देखो, एक पर्सन को एक टाइम पर एक ही वर्क को करना है. अगर एक पर्सन सेम टाइम पे बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाएगा ना, तो वो कोई भी काम बेटर वे में नहीं कर सकता. ठीक है, तो बेटर है कि आपको एक टाइम पर एक पर्सन को एक ही वर्क देना है. सिक्स्थ वन इज देयर शुड बी अ क्लियर डिमार्केशन ऑफ अथॉरिटी राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम. देखो, हमारी जो अथॉरिटी है ना वो क्लैरिफाई होनी चाहिए राइट से बॉटम, मतलब टॉप टू बॉटम. एवरी एम्प्लॉय शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट हिज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन राइटिंग. हर एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी, मतलब उसकी क्या ड्यूटीज हैं, उसके पास क्या पावर्स हैं, वो आप उन्हें मेंशन करोगे, इन्फॉर्म करोगे इन रिटर्न. ठीक है, ऑरली या वर्बली आप जो कुछ बताते हो ना उसका कुछ प्रूफ नहीं होता और हो सकता है उससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट हो. अगर आप कोई चीज रिटर्न में प्रोवाइड कर देते हो तो वो एज अ प्रूफ काम आता है आपके. ठीक है. नेक्स्ट कम्स टू क्रिटिसिज्म. सम मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैव ओपोज्ड द थॉट्स ऑफ फ्यूल. दे हैव एडवांस्ड द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स अगेंस्ट हिज थॉट्स. कुछ ऐसे हमारे एक्सपर्ट्स हैं जो कि फ्यूल की थॉट्स के अपोज्ड हैं. ठीक है, वो फेवर नहीं करते, तो उन्हें कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं जो कि अगेंस्ट हैं फ्यूल के थॉट्स के. देखो, फर्स्ट वन इज इट डज नॉट कंसीडर्ड क्रूशियल एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट सच एज मोटिवेशन, लीडिंग एंड कम्युनिकेशन. फ्यूल ने ना कहीं पे भी ये 3 एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कशन नहीं की. मोटिवेशन, लीडिंग, कम्युनिकेशन, कहीं पे भी इन्होंने इन पे फोकस नहीं किया. मोटिवेट, देखो जब तक आप अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट नहीं करोगे ना तो उनकी एफिशिएंसी नहीं इंक्रीज होती. लीड नहीं करोगे, उन्हें गाइड नहीं करोगे कि कोई पर्टिकुलर वर्क कैसे करना है, तो आप उन्हें जो मर्जी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दो, अथॉरिटी दे दो, तो वो आपकी सक्सेसफुली अचीव नहीं हो सकती. ठीक है. कम्युनिकेशन, जब तक कम्युनिकेशन 2 वे नहीं होगा तब तक आप कोई भी अथॉरिटी दो, कोई भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रहे हो, कोई व्यूज नहीं होता. देखो, आपने कम्युनिकेशन में बैरियर्स क्रिएट कर रखे हैं तो आपके एम्प्लॉयज आपसे हेसिटेट करेंगे ना. दे आर फीलिंग शाई टू कम्युनिकेट विद यू. तो आपको क्या चाहिए, हमें इन 3 पॉइंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए. लेकिन फ्यूल ने तो इनके ऊपर कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं दी, कोई एम्फेसाइज किया ही नहीं है, तो ये उसके डिसएडवांटेजेस हो गए. ठीक है. सेकेंड पॉइंट इज these principles are based on limited study. Third, this theory gave importance to commanding
but did not give any importance to directing and leading. Similar point है, देखो हमने जब 14 प्रिंसिपल्स देखो डिस्कस किए ना, तो फोर्थ पॉइंट आया था आपका यूनिटी ऑफ कमांड. ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड है मतलब आपने कमांड ऑर्डर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है, आपने डायरेक्ट कैसे करना है, कैसे उसे लीड करना है, इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं की गई है. ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके कारण आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं फ्योल के थॉट्स को. In conclusion, it can be said that criticism against the administrative management is not practical. The principles advocated by Fayol are steadfast even today and give or guide the managers. देखो ऐसा नहीं है कि जो हमने अभी पढ़े हैं ये क्रिटिसिज्म बहुत ही प्रैक्टिकली अप्लाई होते हैं, नहीं. देखो हर चीज़ की लिमिटेशंस तो होती ही हैं. आप कुछ भी बेटर कर लो, कुछ ना कुछ उसमें लूप होल्स तो मिल ही जाएंगे आपको स्टिल. ठीक है, लेकिन स्टिल हम बोलते हैं कि कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है जो फ्योल ने दी थी वो आपको आज भी गाइड करते हैं आपके मैनेजर्स को. ठीक है, आई होप यू लाइक दिस टॉपिक और अंडरस्टैंड बेटर. In the next lecture, we will discuss the comparative study of scientific management and administrative management. Right? Thanks and have a wonderful day.